हेलो दोस्तों, साथियों, आज हम पॉलिटी के चैप्टर्स समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहला चैप्टर लेके आया हूँ आपके साथ में, एंड आई एम गिविंग यू द कॉन्फिडेंस दैट वट एवर आई विल मेक यू complete the topics of polity. I'll try to make complete polity, but if in any case whatever number of topic I'll able to complete, that will be very comprehensive and you will not require to read any book or any notes or any NCERT and anything, because if anything required in between, I'll tell you directly. And I have made the complete comprehensive notes for this, so please try to remain calm till the end of the video. It is very useful for you, and it is very useful for the preparation of UPSC as well as SSC and other examination, as well as to understand the kind of Indian polity and what is the constitution and the real meaning of the constitution. So for the larger general life it is also useful, and specifically it is useful for the UPSC aspirant. Okay, so we start with the Indian polity. So before us there is always a question. We always used to listen the constitution, about the constitution. So what the constitution is. So we have to understand faith and aspiration of the people of India. So in a simple word, if you want to describe the constitution, define the constitution, then first line in your mind should become as a faith and aspiration of the people of India, because our constitution can be called the reflection of aspiration and faith of people, as constitution itself start in the preamble, we the people of India. So this is called, and in last it is said that we are giving ourselves. So this constitution is the aspiration of people, which reflected in form of a document, that is called the constitution. Okay, other word constitution ko in Indian context only, in other context this definition may vary. In Indian context, or especially in the written constitution context, the second definition of constitution in single word is supreme law of the land. It is supreme law of the land. Okay, and supreme law of the land, उसको और हम आगे elaborate करें तो the collection of law used in the administration of the country. So there is a law which collected in a document and which is used to be administration of a country. So supreme law of the land से हम derive करते हैं collection of law, but ये collection of the laws ये written unwritten different constitution के लिए apply हो जाता है. So in Indian context it is very crisp and clear that the supreme law of the land or faith and aspiration of the people of India. So collection of law पे हम आते हैं. collection of law में क्या क्या हो सकता है. एक तो constitution है, that is supreme law of the land, and other thing, when it is supreme law of the land, then other laws are inferior law, inferior laws are the laws which are outside of the constitution. Now this is distinction in the written constitution. This distinction is not there in unwritten constitution.
So there is no supreme and there is no inferior or subordinate laws. Okay, but here we are talking in the context of the India. So there is a constitution, and other than constitution there is a statutory law. So we can talk about the recent laws. Farm law, that is a statutory law. Wage codes, and we can talk about the triple talaq bill. So these are the statutory law which passed by the parliament. So statutory law. Third is the ordinances. Ordinances is passed by the statutory law can pass by the parliament as well as state legislative assembly also. Okay, so same in ordinances. Ordinances can be proclaimed by the president as well as governor also. So these ordinances, when the parliament is not in the session and there is urgent requirement of the laws, so we can take example of the farm law. Farm law, when the first wave of corona was going on and parliament was not in session, then farm law come as a ordinances. Then these ordinances convert in the bill, and that passed by the parliament has become the law. Okay, so ordinances. Fourth is judicial decision. Judicial decision are also count as a law precedents. So that Supreme Court and High Court, what judicial decision, special judicial decision, like judicial decision on the triple talaq, they say that this is the null and void, or they may be null and void any law. So that these judicial decision, that is also count as a collection of law. Bylaws. So what is bylaws? Bylaws passed by the lesser legislature like panchayat, municipalities. So your state legislative assembly is not a lesser legislature, it is legislature equal to the parliament in not that manner, but it is like having the same procedure, same things like the parliament is having. So it is not lesser, but lesser legislature like the panchayat and municipalities having their own laws, some laws. 6 number, rules, regulation, notification, ordinances, direction, etc. formulated by the executive. So sometimes cabinet, we used to see the cabinet gave the note to this for this rule, and sometimes changes in the rule. So at the executive level, cabinet of a state or cabinet of the center, that can be having the different rule. So here we are talking about the collection of rules which administered our country. So we are talking about the different rules. So supreme law of the land is constitution, and these are statutory, ordinance, judicial decision, bylaws, rules, regulation, notification, ordinance, direction, etc. formulated by the executive. So whatever executive is having that, and last one is the custom that enjoy the force of law, like customs in the Naga customs. So they are having, or the different councils which is under the 6th schedule. So they were having their own custom, that they enforce as a law. So these are the 7 type of laws which we can call as the we can say these are as the collection of law. Okay, so these are customs. So we talked about the 7 laws. So again, for your understanding,
The constitution is the supreme law of the land, and other laws, inferior laws, statutory law, ordinances, judicial decision, bylaws, rules, regulation, notification, ordinance, and that the given force by the executive, and customs that enjoy force of law. So from here itself the judicial review has come in power, that these inferior law cannot be in contrast of this superior law, or we can say these inferior law are come from the supreme law or constitution that derived from directly from the constitution. So they cannot be in contrast or in against the basic tenets of constitution. Okay, so for the constitution, so till now for the Indian constitution we come across the two important definition or description, that is the supreme law of the land, another it is faith and aspiration, reflection of faith and aspiration of people of India. Okay, so we talk about the constitution, Indian constitution. Indian constitution is called as a organic law. Organic means alive, so it is alive law. So that means it change according to situations, change according to period, time to time. So it has started like 395 articles total, but right now it is around 450 articles. So it is live, it has changed according to time, and there is many constitutional amendment, so is going on time to time. So that is called the organic law. Okay, so our constitution is a organic law. So what is basic tenet of the constitution, and what constitution, for what purpose constitution is there? So there is first purpose for the administrative system, to govern the country. We need a administrative system. That administrative system should be evolved or should be written somewhere. So we took independence in 1947, so we could not have the time to evolve anything, so we should need a system, written system, and that come up in the form of our constitution for administrative purpose. So for the administrative there is 3 tier of administration: center, state, local administration. So if you understand these all things, you will understand the corollary of the constitution and how constitution is arranged. You will understand. So it's a defined people relationship with the government, like legal relationship. What is relationship? If there is a state and that is people, so there should be kind of relationship in between. So these relationships should be legalized, and these legal relationship called the citizenship. So that is mentioned in the agriculture, that is mentioned in the constitution. So constitution is a organic law called we, and purpose is to having the administrative system, and it's the constitution defined the relationship between the government and the people or citizen. Okay, so here we will classify the constitution. So I started talking about the written constitution and unwritten constitution, so we should understand what is difference between the written constitution and unwritten constitution. Initially I said that in the unwritten constitution it cannot be supreme law of the land, because, so you should understand, for unwritten constitution we cannot say the constitution is the supreme law of the land.
in Indian context, because we have written constitution, so we can call it the supreme law of the land. So for this purpose, I would say the provisions. So first thing, the provision have been codified into a single document. In written constitution, some provisions have been codified into a single document. So for the more understanding of this two lines, you should understand first what is provision. Provision is the content, what kind of content there, what things written there, that is called articles, clause, parts, etc. If we talk about the codified, what does codified means? A systematic arrangement. So in upper side we talk about the central, state level and local administration. So here the codification comes. Codification means systematic arrangement. If we see our Indian constitution, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ आ रहा है एंड कौन सा शेड्यूल कहाँ आ रहा है. But if we see, our constitution has written in systematic arrangement. That means it is codified, and there is content which is called provisions in form of article, clause and parts. So what does systematic arrangement see? I'll tell you for the example. For later on, I'll tell you how to remember these these parts of different parts of the constitution, which is around 22. And schedule 12 schedule. So I'll tell you. See, for being a country there should be a territory. So our first part of the constitution is union and its territory. For being a territory, for being a nation, there should be a territory, and on this territory there will be people to whom a government required to govern these people, and there should be a relation between this government and the people. So to having these relationship, this is called, we earlier understand, this is called the legal relationship between the government and people, that is citizenship. So our part 1 is union and its territory, part 2 citizenship. And if there are citizens, these citizens should have some rights that called the fundamental right. And for fundamental right, and there should be some duty of the government also, government of the day or state also, that is the DPSP, directive for the states. And then there should some duty of the people also. So that is fundamental duties. And then the role of center will come. So fifth part is this union, and then state in B part, then the union territory. So this is a systematic arrangement, union and state relationship. And the third tier, later on third tier, that is the Panchayati Raj, municipalities and all, and then union and state relationship, then the different relationship, financial relationship and all. So this is a systematic arrangement of the constitution. So you should understand, if there is a book, अगर एक किताब है उसमें 10वां चैप्टर है, वो पहला चैप्टर नहीं हो सकता. वो 10वां चैप्टर 10वें स्थान पे है, उसका एक रीजन है कि आपको पहले से 10वें तक जाओगे तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है. सेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए बुक which is systematically arranged. So part 1 to part 22, it is systematically arranged. So अगर कहीं भी आपका अमेंडमेंट हुआ है तो उस अमेंडमेंट को उसी सिस्टम के अंदर पुट किया गया है. इट इज नॉट आउट ऑफ दैट सिस्टम. ओके, और हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे. सो this is very important. You should understand the provision have been codified into a single document.
that is constitution. But in unwritten, this is not codified. That means the constitution is not systematically arranged. Why it is not systematically arranged, you can directly understand. Example is given that UK and New Zealand, but why it is not systematically arranged? Because it is not written, it is evolved. So if sometime they require some kind of legislation, so they did that legislation. So it is haphazard, it is according to requirement. They did not visioned all this and put it on paper. So whenever, that doesn't mean they don't have any constitution. They have their constitution, that is collection of all laws. So different time different laws will be there, and these laws collected on a single place and called the constitution. But we have a predefined constitution, and whenever we have requirement, we used to do amendment in this. Okay, so I think it is very clear. So second one, as an enacted, if we talk about the written constitution, it is enacted. enacted का मतलब क्या है? एक स्पेशल बॉडी होती है, वो इसको क्रिएट करती है और एक दिन उसको लागू करती है. सो enacted का मतलब है कि एक, उसमें दो चीजें हैं. एक आपका एक स्पेशल बॉडी होती है जो उसको क्रिएट करती है, एक बॉडी ऑफ पीपल होते हैं वो क्रिएट करते हैं, एंड इट हैज फिक्स्ड बिगनिंग. ओके, सो इसकी फिक्स्ड बिगनिंग होगी, और स्पेशल बॉडी है वो, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एंड इसका फिक्स बिगनिंग है. फिक्स बिगनिंग कब है? 26 जनवरी 1950. So it has fixed, but if for the unwritten, that is evolved. I said it is required, as per the requirement they used to make different laws and collect these laws and put in single place. So, and that is continuously evolving over time. So now यहाँ तक आने के बाद में हम लोग we have to stop here and we have to think again कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्व हो रहा है, सो कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ बन रहा है, बट एक जगह है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बना हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट मेंशन है, क्योंकि वो पार्लियामेंट से पहले इन्विजन किया गया था कि एक पार्लियामेंट होगा, वो पार्लियामेंट ऐसे फंक्शन करेगा, उसमें इतने लोग होंगे. सो इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज पार्लियामेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स पार्लियामेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन से. बट अगर आप बात करेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे पार्लियामेंट में जो बिल पास होके लॉ बनते हैं, उससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता जाता है. बिल पास हुआ, उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्लियामेंट, whereas in written constitution parliament is the product of constitution. So I think it is clear. So for the next point, so the from next point onwards, if you are clear till the second point, you will be able to understand every point. Okay, so in the constitution, if we talk about the written constitution is supreme because everything written in the constitution, and constitution direct every part of the administration. But here the parliament is supreme because parliament is who is making whom. So always, because parliament is the product of constitution, so parliament is constitution is the superior on the upper side. In the written constitution, unwritten constitution, parliament is supreme because parliament is upper side, the constitution is the product of parliament. Okay, and if we talk about the judiciary, so again judiciary enjoy wider power because the judicial review and everything given in the constitution, and judiciary as the protector of constitution, as the interpreter of constitution. So
it will interpret the constitution. Here in the judiciary is the judiciary restricted because parliament is supreme. Parliament can restrict the parliament is supreme. So judiciary is the restrictive. Okay. Next is clear distinction of other laws and constitution. As I talked, the constitution is the supreme law of the land in the written constitution, and other law is the inferior law. Then the constitution and every law should derive from the basic tenet of the constitution. It should take all powers, and it should be the law made which should not be in the intervention with the or in the contravention with the our constitution. So कोई भी लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा के विरुद्ध नहीं हो सकता. ओके. और यहाँ पे सारे लॉ है वो एक जगह इकट्ठे करके रखे, उसी को ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. तो यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ क्या है. बट आवर इन इंडिया वी हैव वेरी क्लियर डिस्टिंग्विश इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. सो इसीलिए अभी आपका ये बात यहीं पे क्लियर कर देता हूं मैं. बहुत सारे लोगों को ये इश्यू होता है कि व्हाट इज सेक्शन एंड व्हाट इज आर्टिकल. सो बेसिकली सेक्शन होते हैं वो भी प्रोविजन ही होते हैं, कंटेंट होता है किसी लॉ का, और आर्टिकल भी कंटेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो आर्टिकल एक कंटेंट है, प्रोविजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. सेक्शन है वो कंटेंट है, वो भी सेम जैसे आर्टिकल होता है वैसे ही कंटेंट है, प्रोविजन है, बट वो लेसर लॉज के लिए होता है. जैसे अगर हम बात करें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, तो उसमें सेक्शन 18 की बहुत बात होती है. तो इट इज लाइक सेक्शन 18 ऑफ दैट लॉ, एंड लॉ इज इंफीरियर टू कॉन्स्टिट्यूशन. It derives all power from constitution, but it is not written in the constitution. It may derive power from Article 17, which is say that untouchability is prohibited, but there is no punishment written in the constitution. So that to execute that Article 17, Parliament need to come up with a law. So that is the law. So in law, in inferior law, the provision and contents are called sections, and in constitution provision and contents are called the article. So ये आपको कोई बुक में कहीं बताएगा नहीं, बट बेसिक बहुत सारे लोगों की इस अंडरस्टैंडिंग लैक करती है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया. ओके, आगे चलते हैं. 6th, फ्लेक्सिबल, रिजिड और बोथ. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है. सो हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड बोथ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको हम आगे जाके समझेंगे अभी. बट अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एग्जांपल देखें तो वो फ्लेक्सिबल ही होना है, रिजिड हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ में. सो इवॉल्व हो रहा है, तो इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी आपका रिजिड नहीं हो सकता. Evolving. Okay, and in the written constitution, बताइए ये फेडरल भी होता है, यूनिटरी भी. फेडरल मतलब स्टेट्स को भी पावर है, स्टेट्स मिलके एक यूनिट बनाते हैं जो यूनियन बोलते हैं. सो फेडरल भी होगा और यूनिटरी भी होता है. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए फेडरल रिलेशनशिप भी दिए हुए हैं, और यूनिटरी जब रिक्वायर होता है तो यूनिटरी बाइस भी है. सो बहुत होता है. बट अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होता है तब तो यूनिटरी होगा, क्योंकि पार्लियामेंट ओनली बॉडी विच इज सुप्रीम. सो यूनिटरी होगा. सारी चीजें वहीं से ड्राइव होता है कि कौन किसका प्रोडक्ट है. पार्लियामेंट अगर प्रोडक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पे सारे रिटर्न के रूल आएंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का, तो ये सारे रूल आएंगे. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी. सो मुझे लगता है कि मैंने कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी कि आपको समझ में ना आए.
अब जब रिटर्न है तो वहां कन्वेंशन की बहुत कम गुंजाइश होगी, सारी बातें लिखी होगी। बट अनरिटन है तो जब जरूरत होगी हाथों हाथ तो लॉ नहीं बन सकता। सो फॉर दैट लार्जली बाय द कन्वेंशन। ओके, सो अब मैं बात करूंगा, स्पेशल टॉपिक है हमारा शुरू करने से पहले, काइंड्स ऑफ मेजोरिटी। ये कहीं भी कोई भी बुक में आपको एक जगह मेजोरिटी लिखी हुई नहीं, बहुत बिखरी हुई सारी पार्ट में लिखी हुई दिखेगी। बट मैं इसको आपको मेजोरिटीज को एक जगह एकदम क्लियर कट नोट्स में लिख के दे रहा हूं, ताकि आपको बाद में जब भी आप पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको कभी इश्यू नहीं आएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ मेजोरिटी। हम कितनी मेजोरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मेजोरिटी दिखाई देगी। सो अगर आपने एक जगह इकट्ठी ये पढ़ ली तो आपको बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कौन सी मेजोरिटी कहाँ अप्लाई हो रही है। ओके, सो फॉर दिस पर्पज मेकिंग मोर सिंपलर और कॉम्प्रिहेंसिव आई wrote it down at the single place. So first of all, understanding of the majorities, majority को understand करने के लिए आपको बेसिकली पहले स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस देखना होगा। सो लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 443 की डायरेक्ट स्ट्रेंथ है और 2 की स्ट्रेंथ आपका एंग्लो इंडियन है, जिसको अभी लेटेस्ट में रिमूव कर दिया गया है। सो बेसिकली बट फॉर एकेडमिक पर्पज मैंने नंबर पूरा करने के लिए आपको दिखाया है 545. So two are for the two were for the Anglo-Indian, but that is not counted right now. That is removed. We will take it separately for you. That is a small topic, but basically these two Anglo-Indian seats are removed. Okay, in the Rajya Sabha there is 233 seats in Rajya Sabha and 12 seat in of the nominated member. So total 245 seats. Now we have to understand, यहाँ पे से बहुत बार क्वेश्चन उठा है. So next जब भी जिसका भी मैं टॉपिक लूंगा उसमें मैं क्वेश्चन भी इंक्लूड करते जाऊंगा. सो मिनिमम नंबर ऑफ कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाउस टू सिट इन द हाउस फॉर डू द बिजनेस ऑफ द हाउस. सो हाउस का बिजनेस चलाने के लिए मिनिमम नंबर कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? जैसे इस हाउस में अगर 545 मेंबर है, इसमें 245 मेंबर है. सो अगर हाउस को चलाना है तो कुछ मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो नंबर कोरम कहलाता है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब इट नॉट लेस देन 1/10. सो 1/10 आपके लोग है टोटल स्ट्रेंथ के अगर प्रेजेंट है तो उसको कोरम बोलते हैं. लोकसभा का कोरम कितना होगा? 1/10 है, 545 नंबर है तो अराउंड 55 और मोर पीपल नीड टू बी देयर. सो अगर लोकसभा का बिजनेस और या लोकसभा अगर बैठती है, अगर उसमें कोई बिजनेस करना होता है, कोई बिल वगैरह की बात करनी होती है, तो सिटिंग के लिए कोरम कितना होना चाहिए? लोकसभा में कम से कम 55 लोग होने चाहिए. एंड इन दिस 55 दिस क्वेश्चन में कम इन दिस 55 दे इंक्लूड presiding officer also. So presiding officer in Lok Sabha is speaker. Presiding officer in Rajya Sabha, that is not the member of the Rajya Sabha, so that will automatically there is no need. But in the Lok Sabha, the speaker is the member of the Lok Sabha. So he is counted, he or she is counted in 545. So it's also counted in 55 numbers. So 55 or more member including the presiding officer should be there to make a quorum for the Lok Sabha. If we talk about the Rajya Sabha, it is 25 and more. As Rajya Sabha chairman is not the member of this, so that is not included in this. Okay.
द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाँ, सो वी हैव टू, जब बात निकली है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तो वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अलाउड टू वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस. सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यूजुअली नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, स्पीकर यूजुअली नॉट वोट, बट व्हेन देयर इज ए टाई, बराबर बराबर वोट हो गए हैं, एक एक वोट हो गया है, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउड टू वोटिंग इन सेकेंड इंस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट. सो कास्टिंग वोट क्या होता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं, जब टाई हो जाता है तो इट इज इन सेकेंड इंस्टेंस, सो कास्टिंग वोट इज इन सेकेंड इंस्टेंस, सो दैट इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट. So now first majority, we talk about the first majority. More than 50% of the total strength of the house. What is absolute majority? Absolute majority is the directly more than 50% of the house. इसको कह सकते हैं 50% plus 1. So that is called the एब्सोल्यूट मेजोरिटी. लोकसभा में कितनी हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी? 273, हाफ, मोर देन हाफ, 545. तो लोकसभा के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी है? 273. देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट, बट 273 इज द इंपॉर्टेंट नंबर. आई टेल यू हाउ. राज्यसभा में 245 नंबर है, तो 123 इज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी का एज सच कहीं यूज नहीं है, ये हमेशा किसी के कॉम्बिनेशन में आता है, या तो इसका सबसे बड़ा यूज होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए होता है. सो अगर आपने गौर किया होगा तो 2014 जब बीजेपी के लोग चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि मिशन 273 प्लस. तो वो मिशन 273 प्लस का मतलब था कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के लिए टोटल स्ट्रेंथ का हाफ उनको चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए थी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए दे वर फाइटिंग. सो बिफोर दैट इंडिया सफर्ड फ्रॉम 1989 to 2014. 1989 was the last period of Rajiv Gandhi, and 2014 was the period of Narendra Modi. So in between Rajiv Gandhi to Narendra Modi, in between there were a minority government. Minority government means there were not a single party who is having the absolute majority, 273 numbers. So UPA government वहाँ भी 273 नंबर किसी एक पार्टी के नहीं थे. उससे पहले एनडीए की गवर्नमेंट थी अटल बिहारी जी की, उसमें भी कोई भी सिंगल पार्टी के 273 मार्क्स नहीं थे, 273 सीट्स नहीं थी बेसिकली. सो ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो मोर इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए. फुल मैंडेट की गवर्नमेंट, ओके. डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कहीं यूज नहीं है, कॉम्बिनेशन में है. वो कॉम्बिनेशन में कहाँ है हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी में आगे. सो सेकंड इज सिंपल मेजोरिटी. सो हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखा, अब सिंपल मेजोरिटी सबसे काम की मेजोरिटी है. ये कह रहा है कि मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, देखिए मेजोरिटी का मतलब हमेशा के लिए 50% होगा. ये आप हमेशा सभी मेजोरिटी में पाएंगे कि 50% से एक ज्यादा का मतलब मेजोरिटी है, ठीक है. बट ये 50% के लिए बेस क्या होगा, उसी में सारे डिफरेंस है. ओके. सो अगर हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में देखें तो वो 50% किसका है? एब्सोल्यूट नंबर का, टोटल स्ट्रेंथ का 50% है. ओके. बट इफ वी टॉक अबाउट दी सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी 50% है, बट ये मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. सो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि जैसे लोकसभा में 545 मेंबर है, 545 मेंबर में से 520 मेंबर इज प्रेजेंट, फाइन. एंड 525 में से 515 यानी 5 लोग वोट करना नहीं चाहते हैं, सो 515 लोगों ने ही वोटिंग किया है. तो इसका जो मेजोरिटी नंबर होगा वो होगा 515 का 258. सो इट इज नॉट 273,
273 इज द एब्सोल्यूट 545 का। बट अगर 515 लोग ही प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं तो इट इज अराउंड 253। सो देर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस all this thing. You should understand the basic concept of this. So there is what kind of uses of this simple majority? It is used for the no confidence motion. बहुत ज़्यादा यूज में आती है, वाइडली कहीं भी देखेंगे जनरली सिंपल मेजोरिटी यूज होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में होती है, कॉन्फिडेंस मोशन में होती है। वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस। सो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है जब भी, इसको हम ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रेसिडेंट का एड्रेस कब और कौन क्या करवाता है। सो इस पे भी हम बात करेंगे। तो वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस, दैट इज ऑल्सो वोट ऑफ थैंक्स शुड बी ऑल्सो विद द सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जितने लोग प्रेजेंट है उससे 50% लोग, अगर समझो 545 में से 200 लोग ही प्रेजेंट है, उसमें से 180 लोग ही वोट करना चाहते हैं, तो इसका कितना हुआ, 91 लोग ही आपका मेजोरिटी बन गया। सो अगर आपने गौर किया होगा, ये जो बेसिक है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जनरली जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे देन इट इज़ मोर यूजफुल टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स। सम टाइम कभी कभी लोग, जैसे प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ और गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी में नहीं है, अगर गवर्नमेंट को अपोजिशन को सपोर्ट करना है कोई मैटर पे, तो वो डायरेक्ट तो सपोर्ट नहीं कर सकती। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 200 लोगों की बात की, यहाँ 200 में से फॉर एग्जांपल अगर सारे दूसरे अपोजिशन का कोई एक छोटी पार्टी जिसके 50 मेंबर है और यहाँ पे बाकी जो मेजर अपोजिशन है उसके समझो 70 मेंबर है, सो और गवर्नमेंट के ओनली 80 मेंबर है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट तो मेजोरिटी में नहीं है, बट ये जो 50 मेंबर वाली पार्टी है ये क्या करेगी, बाइकआउट कर देगी कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। सो दे विल गो आउट फ्रॉम दिस, देन देर विल बी ओनली आउट ऑफ 150 50 चले जाएंगे, 150 विल रिमेन। सो 150 का आपका मेजोरिटी कितना बनेगा आप, सो 76 पीपल। सो गवर्नमेंट के 80 लोग हैं, सो गवर्नमेंट कैन पास दिस वोट ऑफ थैंक्स ऑफ प्रेसिडेंट और अदर बिल ऑल्सो, ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो। सो दैट मैथ्स यू शुड अंडरस्टैंड, ओके। अगेन योर अंडरस्टैंडिंग आई टेल यू कि अगर गवर्नमेंट के, अगर पार्लियामेंट में 200 लोग प्रेजेंट है और कोई डिस्कशन हुआ, फॉर एग्जांपल वोट ऑफ थैंक्स का, प्रेसिडेंट का वोट ऑफ थैंक्स करना है, 200 लोग अवेलेबल है, अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए वोटिंग होनी है, 50 लोग एक पार्टी के हैं, ए पार्टी के हैं, 70 लोग हैं जो मेन विपक्ष पार्टी के हैं, बी पार्टी के हैं, और 80 लोग हैं वो गवर्नमेंट के हैं। सो अगर गौर किया जाए तो अपोजिशन में ज़्यादा लोग हैं, 120 लोग हैं, बट अगर इस पार्टी को, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है बट डायरेक्टली नहीं करना है, सो व्हाट दे डू, दे विल गो आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट, विरोध में बाहर चले जाएंगे। सो ये लोग चले जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 50 लोग चले जाएंगे, 150 लोग ही बचेंगे। 150 की प्रेजेंट ऑफ वोटिंग होगी तो 76 लोग अगर वोट कर देंगे जिस साइड में, वो मेजोरिटी हो जाएगी, और गवर्नमेंट के पास 80 लोग हैं तो आराम से हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको दूंगा, एक बिल पास करने में ये मेजोरिटी ऑर्डिनरी बिल पास करने में भी काम आती है। जैसे ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो कौन सा अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, फार्म लॉ, ये ऑर्डिनरी बिल है। ट्रिपल तलाक मैंने अभी बताया ही था। सो फार्म लॉ एंड ट्रिपल तलाक यू नीड टू ऑर्डिनरी और सिंपल मेजोरिटी। इसी तरीके से 2008 में इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, 2008 में गवर्नमेंट के पास में, यूपीए गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी नहीं रही जब उन्होंने न्यूक्लियर डील करनी चाहिए।
यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी लेफ्ट पार्टीज। लेफ्ट पार्टीज अगेंस्ट में है न्यूक्लियर प्रोग्राम के। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक रहे हैं, जिनको बेस ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया गया था तो उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, बट लेफ्ट ने बोला कि हम विरोध के लिए इनके सामने कैंडिडेट लाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके कामों का विरोध करते थे। बेसिकली लेफ्ट की आइडियोलॉजी है कि देयर शुड नॉट बी न्यूक्लियर प्रोग्राम। जब पॉपुलेशन भूख मर रही है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्या जरूरत है, ये बेसिक आइडियोलॉजी है। सो जब न्यूक्लियर डील हो रही थी अमेरिका के साथ 2008 में, यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के साथ में, तो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी बेसिकली लेफ्ट। सो लेफ्ट ने जब इस बात आई तो लेफ्ट ने इस बात के विरोध में अपने आप को बैक कर लिया। तो उस टाइम में इनके खिलाफ सपा एंड बसपा, समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी विरोध में थी, जो अपोजिशन में थी। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली उनके नंबर पूरे करने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट तो नहीं किया गवर्नमेंट को, बट वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद में टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट एंड वोटिंग की घट गई, जिससे कि गवर्नमेंट ने इजीली वो बिल पास कर दिया। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन सर्वाइव इन द सिंपल मेजोरिटी। जब सिंपल मेजोरिटी होती है तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी मिनिस्ट्री, पूरी गवर्नमेंट विल सर्वाइव। सो इट इज कॉल्ड द फंक्शनल मेजोरिटी। ओके, थोड़ा सा और है, आई कंप्लीट इन विद इन टाइम फ्रेमवर्क। If the vote of thanks of the president defeat the council of minister has to be passed confidence motion in the week time. So B मैंने आपको पहले ही बताया, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल पास करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी लगेगी। अब बताओ, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव। सो half of the state legislative houses should pass some constitutional, special constitutional amendment which is related to the state also, like the GST. So GST आधे से ज़्यादा स्टेट्स को भी पास करना, so that is also a simple majority. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, इनके इलेक्शन में भी आपको सिंपल मेजोरिटी लगती है, मतलब 50% से +1 लोग अब इनको वोट करना चाहिए। सो हम प्रेसिडेंट का, स्पीकर के और डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन को अलग से भी पढ़ेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ। अप्रूवल गिवन बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू कंटिन्यूअस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, ये स्टेट वाला है, नेशनल इमरजेंसी का नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल, इसको कंटिन्यूअस करने के लिए जो पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस है वो भी सिंपल मेजोरिटी से लगता है। अप्रूवल गिवन बाय लोकसभा फॉर डिसकंटिन्यूअस ऑफ द नेशनल, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है उसको डिसकंटिन्यूअस करना है तो जो अप्रूवल लोकसभा देता है वो भी आपका सिंपल मेजोरिटी से होता है। और स्पेशली लास्ट वन, दैट डिफॉल्ट, जहां कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेजोरिटी का बात नहीं किया गया, लिखा हुआ है सिर्फ मेजोरिटी से इसको पार्लियामेंट को पास करना है, दैट मीन्स सिंपल मेजोरिटी। सो पार्लियामेंट जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है वहां उसका मतलब यही होता है कि सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 67 की बात करें, ये 67B की बात करें, ये रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, तो रिमूवल ऑफ वाइस चेयरमैन के लिए आपको राज्यसभा में तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, बट लोकसभा में जब ये राज्यसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा में आपको सिंपल मेजोरिटी ही लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, दैट विल कम अगेन एंड अगेन इन एनी फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। सो जब भी आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सो राज्यसभा में अगर इसके अगेंस्ट में है, आपने मोशन लाया है एंड मोशन
शुड बी पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी. सो हम बात करेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है आगे, बट लोकसभा में दैट शुड बी पास्ड इन द with the simple majority. So now effective majority, third one is, so we talked about the absolute majority and then we talk about the simple majority. Third one is the effective majority. Effective majority means क्या है कि effective strength of the house. So कोई भी हाउस में किसी भी टाइम कुछ वैकेंसी हो सकती है, बिकॉज हम 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाते हैं. सो दे में बी वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, वैकेंसी ड्यू टू टर्म खत्म हो गई है, रेजिग्नेशन ड्यू टू डेथ ऑफ एनीबडी. सो वैकेंसी किसी भी तरीके से हो सकती है. लाइक 245 है, वहाँ पे 15 सीट वैकेंसी है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस इज 230 का आपका मेजोरिटी कितना होगा, हाफ कितना होगा, 116 और मोर. सो इफेक्टिव मेजोरिटी. अभी हमने इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज अभी देखा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, वो आपका आर्टिकल 67B के अंदर में आता है, तो उसको रिमूव करना है, तो उसको कैसे रिमूव करना है, वो आपका इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है आपकी राज्यसभा में एंड सिंपल मेजोरिटी लगती है आपकी लोकसभा. यही है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी. रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा आल्सो रिक्वायर्ड दैट इफेक्टिव मेजोरिटी. अब आते हैं हम इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट है. सो गिव 5 मिनट, आई विल क्लियर इट. द सिंपल, व्हाट इज द सिंपल मेजोरिटी? सो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर. हम स्पेशल मेजोरिटी 3 देखेंगे. सो फर्स्ट काइंड है वो है प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका. स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यही है, अभी तक हम मेजोरिटी देख रहे थे, अब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे हाईएस्ट मेजोरिटी है 2/3. मेजर सिंपल नॉर्मल मेजोरिटी कितना होता है, 1/2 यानी 50%. 2/3 होता है अराउंड 66%. सो मोर देन दिस. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट मेजोरिटी. So not less than 2/3 of the member, यानी 66% of the member present and removed. Okay, so first kind की simple है, 2/3 member present and voting. अगर for example मैं बोलूँ कि 100 ही लोग हैं, so simply 2/3 है, around 67 people है, तो भी even this is not like the simple, it is less than simple majority, but it called the special majority because it is saying that only 2/3 of member present and voting. ये फर्स्ट काइंड है. ये 2 जगह स्पेशली यूज होती है, आर्टिकल 249 एंड 312. ये स्पेशल आर्टिकल है. ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे आए हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे. बेसिकली 249 होता है, वो वहाँ पे राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में एक रिजोल्यूशन पास करता है, और उस रिजोल्यूशन के थ्रू वो रिजोल्यूशन है वो 2/3 ऑफ मेजोरिटी से होता है, वही प्रेजेंट एंड वोटिंग से राज्यसभा पास करता है नेशनल इंटरेस्ट में, कि पार्लियामेंट को बोलता है कि स्टेट के सब्जेक्ट पे आप लेजिस्लेट करो, कोई रूल बनाओ जिसका पर स्टेट का हक है, बट वो पार्लियामेंट को पावर देता है, और ये 1 ईयर के लिए होता है. बहुत सारे रूल बने हुए हैं. लेटेस्ट वाला है रेरा का है, जो कि आपका रियल एस्टेट के लिए है, एक बिल आया था, वो भी पास किया है लेटेस्ट में. एंड उसके रिसेंट में, उसके बाद में हम आर्टिकल 312 की बात करते हैं. ये होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए है. तो राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से, टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इस पे लेजिस्लेट कर सकता है. सो 249 एंड 312 ए फर्स्ट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3. अब सेकंड काइंड में क्या होता है, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, वो कई कॉम्बिनेशन में काम आती है. सो पहली शर्त तो ये है कि 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग है. इसके साथ में ये शर्त है कि मेजोरिटी
ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो ये मैंने उस टाइम बोला था ना 100 लोग प्रेजेंट है, 67, ये 2/3 हो गया, बट यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, आपको दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ये जो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ये 273 है, सो ये जो भी आएगी वो 273 से ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिकली 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। सो ये बहुत ही यूजफुल है, आपको समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ये जरूरी है। सो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, प्लस आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होना चाहिए, दोनों मिलके ही होगा, दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि 445 है, 545 है, 482 प्रेजेंट है एंड 480 वोट कर रहे हैं। सो अगर मैं 2/3 इसका करूं तो 320 आता है। 320 इट इज मोर देन 273। सो ये इस कंडीशन को, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल गिवन टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम आगे भी लिखा हुआ है, सो यू विल गेट इट। सो अप्रूवल गिवन बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू कंटिन्यू द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए तो आपका सिंपल मेजोरिटी की बात हुई थी, बट इसको कंटिन्यू करने के लिए आपका मतलब 6 मंथ के बाद में कंटिन्यूअस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, there need to be the approval from both houses of parliament in the form of two-third of present and voting and plus absolute majority, that is called the special majority. So ये सब जगह आपका special majority, तीनों टाइप को स्पेशल मेजोरिटी ही लिखा हुआ है। सो आपको समझना होगा कि कौन सी जगह पे किस टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है। सो ये तीनों टाइप आपको अंडरस्टैंड करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी को कई ज़्यादा तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। सो आपको बेसिकली समझना होगा कि कहाँ पे कौन सी स्पेशल मेजोरिटी में डिफरेंस है। ओके, सो अप्रूवल गिवन बाय बोथ हाउसेस टू प्रेसिडेंट को अप्रूवल दिया जाता है दोनों हाउस का की तरफ से इसी स्पेशल मेजोरिटी सेकंड काइंड या बी काइंड में टू रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी ये बहुत बड़ा एग्जांपल है आपके सामने है, जब लास्ट टाइम में जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे मिश्रा जी, उनके खिलाफ अपोजिशन ने उनको रिमूव करने के लिए मोशन लाया था, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन ऑफ द हाउस, स्पेशली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बट अगर वो लाया जाता जज को हटाने के लिए, तो उसमें बेसिकली कौन सी मेजोरिटी लगती, उसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बी काइंड, जिसमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेम आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए लगता है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए लगता है, कैग के लिए लगता है। ओके, एंड 169 के थ्रू अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है कि इस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, जैसे कि 6-7 स्टेट में है, महाराष्ट्र में, आपका बिहार में है फॉर एग्जांपल, स्टेट लेजिस्लेटिव और महाराष्ट्र में भी है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी अभी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए हैं, सो काउंसिल होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इक्वल टू योर, it is not exactly equal, but for example it is equal to the Rajya Sabha. So state legislative assembly अगर क्रिएट की जाती है तो आर्टिकल आपका 169 के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इसी 2/3 मेजोरिटी से प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से क्रॉस होना पड़ता है। एंड अब लास्ट है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ थर्ड काइंड। ये तीसरी तरह की स्पेशल मेजोरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल मेजोरिटी है। ये आपको डिफरेंस
क्लियर डिफरेंस करेगा। ये एक ही जगह यूज होती है, वो होती है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 2/3 ऑफ मेजोरिटी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का है तो 545 का। यहाँ पे आपको अभी हमने देखा था वहाँ 320 में काम हो रहा था, बट हियर यू नीड टू गो 364 एंड 164, दैट इज कंप्लीट 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सो वहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग था दोनों में पीछे, इसमें कंप्लीट। सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ही इम्पीचमेंट होता है, बाकी किसी का इम्पीचमेंट नहीं होता। सो बेसिकली प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ थर्ड काइंड लगती है। सेकंड काइंड में आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ जजेज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो ये डिफरेंस बहुत यूजफुल है। मैनी टाइम न्यूज़पेपर में आता है कि स्पेशल मेजोरिटी से जजेस को हटाया, सेम है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत टाइम ये गलत भी लिखा होता है न्यूज़पेपर में कि इम्पीचमेंट ऑफ जजेस का इम्पीचमेंट नहीं होता, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। इसके लिए किसी को अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगली बार आपको बताऊंगा, जब प्रेसिडेंट का टॉपिक आएगा तब बताऊंगा कि सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट वर्ड क्यों यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में महाअभियोग कहते हैं। ओके, सो आई थिंक मेजोरिटी इज क्लियर फॉर यू। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड फॉर यू पीपल, स्पेशली आप लोगों के लिए, कि मैं थैंक्स इसी तरीके से करता हूँ कि भगवान आपको सुख एंड समृद्धि दे एंड आपको ताकत दे कि ये सुख एंड समृद्धि आप लोगों में बांट सके। थैंक यू।